بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پرائم ٹائم بلیٹن کے ساتھ میں ہوں ذوق احمد، میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر رشید اور میں ہوں عائشہ انصاری۔ سب سے پہلے بات تہلکہ خیز آڈیو کی۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی باتیں افشا ہونے پر ملک بھر میں بھونچال آ گیا۔ ایک ہونے والی آڈیوز میں وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر حکام کی باتیں سنی جا سکتی ہیں۔ لیگی رہنما مریم نواز کے اقدامات کے لیے بھارت سے صنعتی پلانٹ منگوانے پر مبینہ طور پر بات ہوئی۔ ہاؤسنگ کالونی کے لیے گریڈ اسٹیشن بنائے جانے کی باتیں بھی شامل ہیں۔ آڈیو میں وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، وزیر دفاع خواجہ آصف اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سمیت دیگر رہنماؤں کی آوازیں ہیں۔ لیک ہونے والی آڈیو میں مبینہ طور پر نون لیگی رہنما اور وفاقی وزراء پی ٹی آئی کے استعفوں پر بات کر رہے ہیں۔ نہیں ایک سیکنڈ سر، دہلی آپ 30 کا نوٹس دے رہے ہیں، 7 دن والا تاکہ 6 والا دے دیا، پھر اب آج 7 کل 8واں میں ابھی ٹوٹل دیا ہے انہوں نے سب کو نوٹس، پر ایک لسٹ دیا ہے کہ آپ لوگوں نے آج کے 6 کو ملنا ہے۔ ہماری آج ڈیٹیل میٹنگ آج ہم ٹائپ کرا کے وہ ہم لیڈرشپ کو دیں گے کہ اپروول دیں گے۔ یعنی 6 لوگ جن لوگوں نے پیش ہونا تو 30 لوگوں نے، ان میں سے جن 7 8 کے استعفے ایکسیپٹ کر رہے ہیں وہ میرے صاحب سے کلیئر کروا دیں گے، ان کے استعفے ایکسیپٹ ہو جائیں گے، اسی بات میں ایکسیپٹ ہو جائیں گے کہ آپ نے کنفرم کی تو جائے جا رہے الیکشن نہیں آتے کل جب میٹنگ ہو نہیں آتے تو ہاں نا ٹھیک ہے، میرا مطلب رزلٹ کیا ہوتا ہے ٹیم سامنے آئے گی اس کے بعد کیا ہوگا سر؟ وہ بلائیں گے، اگر وہ نہیں بھی آتے وہ کہیں گے آج اس کے سگنیچر ٹھیک ہے، ادروائز جس کو نہیں کرنا کہیں گے اس کے سگنیچر ٹھیک نہیں تھے یا اس نے 6 تاریخ کے بعد جو ہے وہ ڈسکریشن جو ہے ہمارے ہاتھ میں آئیے گا، رکھنے بنیادی بات ہے۔ جو بندہ نہیں آئے گا اس کا کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں اس کے سگنیچر ٹھیک ہے، وہ نہیں آیا۔ اگر ایک بندے کو آپ نے فائر کرنا ہے جی he doesn't show up تو what will you say؟ نوٹس ایکسپائر ہو گیا نہیں آیا، ہم نے بجٹ کی میٹنگ تیار کر ہماری میری گزارش ہے کہ میں نے آپ کو سمپٹائز کر دیا اس میں دیر نہ کریں بس۔ 6 سے پروسیس شروع ہو جائے گا، نہیں مگر آپ نے 5 کو بتانا ہے کہ ان 30 میں سے ایکسیپٹ کرنا ہے، شارٹ لسٹ کر کے ہم لائٹ کر کے ایک آپ کو دیتے ہیں جو آپ لندن سے پورے بھول کے لینی ہے جو شام 4-5 نکل گئے کوئی رانا صاحب کو اتھارٹی بھیجنا ڈیسائڈ کر ڈیسائڈ جو ہے وہ جس طرح سے آپ نے کل جو ڈسکشن کی۔ ناظرین، مریم نواز اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان جو بات چیت ہوئی اس کی آڈیو بھی لیک ہو چکی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم ہاؤس سے لیک ہونے والی ایک اور آڈیو میں مبینہ طور پر مریم نواز کے داماد کے لیے پلانٹ سے متعلق بات چیت ہو رہی ہے۔ آپ بھی سنیے۔ فلیٹ آئے گا چلیں اس کو پھر ان کو آن بورڈ لے کے، اس کی بیوی کا ویسے بھی سرجری ہوئی ہے تو کوئی تھوڑا سا ریسٹ کر کے ایک کام سر کل مجھے مریم صاحبہ نے واٹس ایپ کیا تھا، ہمارا تھوڑا سا چیٹ ہوا تھا، وہ بالکل نہیں کرنے کا سر، بہت فلیک آیا۔ کیا یہ جو ان کے داماد ہے نا سر راہیل، یہ کوئی مجھے دیا کیا کیس دیا، آپ اس کو دیکھ لیں ڈاکٹر صاحب، بات سنیں نا اس کا طریقہ ہے نا، مجھے رات بات کی تھی، he's her son-in-law and very dear to her and rightly so کر کے لاجیکلی آپ بیٹھ کے ان کو مل کے یا یہ ملنے کہ جی یہ ایشوز ہیں، یہ میں کہتا 2 کام ہوتا ہے سر، ایک ان کا گریڈ اسٹیشن آدھا آ گیا ہوا انڈیا سے پلانٹ وہی ہے نا، ایسا ہی ہے سر، ہاں باقی آدھا رہ گیا ہوا ہے سر۔ ایشو یہ ہے کہ وہ پہلے جائے گا ECC میں، پھر آئے گا کیبنٹ میں، اب پرائم منسٹر کی عزیز فارمر پرائم منسٹر کی ڈائریکٹ انڈیا سے مشینری آنا آپٹکس کے لیے تو بڑا سر، آپٹکس نہیں، یہ بالکل گلے پڑ جائے گی بات، میں مانتا ہوں، تو اس کو آپ پہلے بتا دیں، پھر میں اسے خود بات کر لوں گا بڑے اچھی طریقے سے۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ دوسرا جو کام ہے نا سر ان کا میپکو والا، جو گریڈ اسٹیشن کی انہوں نے اتحاد پارک بنایا رنگر خان میں، وہ ہم کرا رہے ہیں۔ 2 کام ہونے تھے، پہلا تو میں نے کہا جی میں بھی لگ جاتا ہوں۔ اتحاد پارک کیا ہے؟ کوئی باہر ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہے ہوں گے سر، تو ہاؤسنگ سوسائٹی میں اپنا گریڈ اسٹیشن بنانا پڑتا ہے، ایک نیشنل وے میں ہو جائے بس، وہ تو ہو جائے گا، وہ تو روز لوگ کراتے ہیں، کوئی ایشو نہیں، لیکن یہ جو ہے نا سر انڈیا سے مشینری لانے میں بڑا فلیک آئے گا۔ جی جی، اور پھر رات ہوتا نا سر چپکے سے آ جاتی، ECC میں لے جانا، وہاں ڈسکس ہونا اس نام سے، پھر کیبنٹ میں ڈسکس ہونا۔ اس کو آپ بات کریں، پھر میں جب لندن سے ٹرکی سے آؤں گا میں خود بلا کے سمجھا دوں گا۔ میری رائے یہ ہے سر کہ مناسب وقت پہ ہم ڈار صاحب کی ڈیوٹی میں وہ کر لیتے ہیں سر،
बड़े मियाँ साहब से गाड़ी भी उन्होंने रिव्यू करा ली थी, वो फिर नहीं गई सर। ठीक है, फिर ऐसा कर लें। जी सर, इस तरह कर लें, ठीक। बाकी सर न्याय की बात है सर, ये आमिर इलियास राणा भी कल हमें फवाद साहब भी मिले थे, ये सब लोग कह रहे हैं सर कि बहुत तसल्ली कर लें, ये मकबूल बाकर में आप वही गलती कर लें। मरियम नवाज और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान चौधरी परवेज इलाही से मुतल्लिक गुफ्तगू की ऑडियो भी लीक हो गई। शहबाज शरीफ ने बड़ा भाई पूरी जिंदगी परवेज इलाही के लिए राह हमवार करता रहा और इसने जवाब में क्या किया। मरियम नवाज ने कहा कि जो अपने बड़े भाई का ना हुआ किसी और को क्या होगा। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे बरतानिया के मौके पर पीटीआई बरतानिया ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के घर के बाहर भरपूर मुजाहरा किया, जिसमें पीटीआई बरतानिया के अहदेदारान के साथ साथ लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे बरतानिया के खिलाफ एहतजाज किया। तफसीलात सलीम साबरी बताएंगे। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरा बरतानिया के मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया के ज़ेर एहतमाम मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज किया गया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया के सदर इमरान खलील, पीटीआई लंदन के सदर वकास सागिर समेत दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर फिजा हुकूमत मुखालिफ नारों से गूंजती रही। शुरका ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे उठा रखे थे और इमरान खान के हक में नारे लगा रहे थे। शुरका का कहना था कि पूरा पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ है, लोगों को 2 वक्त की रोटी मयसर नहीं, लेकिन ये हुकूमती टोला अवाम के पैसे पर बैरूनी दौरे कर रहा है। हालिया लीक होने वाली नई ऑडियो में भी उनका असल चेहरा सबके सामने आ गया है। इमरान खान कौम का हकीकी लीडर है, जिन्होंने कौम को खुददारी का दर्स दिया है। पीटीआई ने यह प्रोटेस्ट भी किया है और अभी मैं एक ग्रुप को लेकर जा रहा हूँ, पीस प्रोटेस्ट करेंगे शहबाज शरीफ के घर के बाहर। जहाँ शहबाज शरीफ रह रही है जी, शहबाज शरीफ यहाँ पे आए हैं, वो वैसे भी एब्सकॉन्डर से मिलने आए हैं, वो एज अ प्राइम मिनिस्टर किसी एब्सकॉन्डर से नहीं मिल सकते। एक तो वो खुद मुजरिम और दूसरे मुजरिम से मिल रहे हैं, पाकिस्तान की तौहीन है, पाकिस्तान गवर्नमेंट की तौहीन है। हमारा जो क्राइम मिनिस्टर है वो इधर आया हुआ है और माशाल्लाह बड़े शॉर्ट नोटिस में हम सब इकट्ठे हुए हैं और इंशाल्लाह ये जिधर जिधर जाएंगे हम इनका पीछा करेंगे। शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे आए हैं अनऑफिशियल अपने विजिट पे टैक्स पे के मनी के ऊपर, उसके अगेंस्ट हम आपको पता है पाकिस्तान में सब क्या हालात कर रहे हैं। आधा पाकिस्तान डूबा हुआ है, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो बिल्कुल डाउन है, जो फॉरेन रिजर्व है वो भी बिल्कुल डाउन है। तो इस हालात में अगर आप टैक्स पे के मनी पे यहाँ पे आके अपनी पॉलिटिक्स डिस्कस करें तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। शहबाज शरीफ आए हुए, हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट के लिए आए हुए ताकि पाकिस्तान में जो इसने महंगाई की इंतहा कर दी हुई है कि लोग वहाँ पर परेशान हैं। मैं अभी पाकिस्तान होकर आई हूँ, बेड़ा गर्क हुआ है मुल्क का। आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पर आए हैं वो टैक्स पेयर की मनी से पूरा काफिला लेके आए हैं। एक दूसरी साइड पे जाके दुनिया वालों से भीख मांग रहे हैं, एक साइड पे कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं, और यशी के लिए यहाँ पर आए हैं। पाकिस्तानी और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मेंबर बनकर खड़े हैं क्योंकि हम पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारा मुल्क है, पाकिस्तान के लिए हमारी जान हाजिर है, लेकिन जब ये लोग यहाँ पे आके मुल्क का सौदा करते हैं, जो इश्तिहारी हैं, जो मुल्क की बगा की खातर
मुल्क के खिलाफ चाहते हैं उनके खिलाफ आज एहतजाज किया हमने। मौजूदा खराब मुआशी हालात का वाहिद हल मौजूदा करप्ट हुकूमत से छुटकारा है और वक्त की जरूरत है कि साफ शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। बर्मिंघम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मिडलैंड्स के ज़ेरे एहतमाम सैलाब ज़दगान की मदद के लिए फंड रेजिंग डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें बरतानिया भर से PTI अहदेदारान, कारकुनान के अलावा मकामी काउंसलर्स और दीगर शुबहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की और दिल खोल कर अतियात दिए। मज़ीद अहवाल आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। समाजी व कारोबारी शख्सियत जाहिद भट्टी की मेजबानी में होने वाली तकरीब में साबिक मुशीर वजीर आजम पाकिस्तान साहबजादा जहांगीर, बैरिस्टर मियां वहीदुर रहमान, राना अब्दुल सत्तार व दीगर ने शिरकत की। तकरीब में तहरीक इंसाफ के ओहदेदारों और कारकुनों ने इस अज़म का यादा किया कि मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब मुतासरीन को अकेला नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उनकी आबादकारी तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। वेस्ट मिडलैंड्स की सदर रिफत मुगल, जनरल सेक्रेटरी नासिर खान, सीनियर नायब सदर अब्दुल्ला मुश्ताक ने तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहा, जबकि तकरीब के स्टेज सेक्रेटरी के फराइज चौधरी मुबशिर सिद्दीक ने एहसन तरीके से सरअंजाम दिए। फंड्स रेजिंग का आगाज किया। शुरका ने अपने दुखी बहन भाइयों के लिए दिल खोल कर अतियात दिए और 1 लाख के करीब फंड जमा हुए। इस मौके पर इमरान खान की बनी शर्ट्स और दीगर घरेलू अशिया की नीलामी भी की गई, जो खवातीन की तवज्जो का मरकज बनी रही। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर आजम के मुशीर साहबजादा जहांगीर और दीगर शुरका ने कहा कि डैम्स न बनने की वजह से पाकिस्तानी अवाम को जानी व माली नुकसान उठाना पड़ा। For a PTI event for an amazing cause, Pakistani floods. We've raised over £100,000, which I think is absolutely amazing. ह्यूमन कैटास्ट्रॉफी को भूल जाइए, कोलेक्ट्रल डैमेज की बात कर रहा हूँ। लोग अपने गांव नहीं पहचान पा रहे, गांव के गांव बह गए, घर तो छोड़िए। तो हमारी मेरी और खास साहब अक्सर आ रहे हैं टीवी के ऊपर, यही एक अपील है और यही एक अपील खास साहब कर रहे हैं कि आप ओवरसीज पाकिस्तानी जो है, जो भी आप पाकिस्तान को बेचना चाहते हैं, चाहे 50 हो, 10 पाउंड हो, 1 लाख पाउंड हो, दीजिए जरूर। ये मत भूलिएगा कि मोस्ट ऑफ अस, हम कोई 99% जो हैं, हम उन्हीं गांवों से यहाँ पर आए थे। पाकिस्तान में एक आफत आई अल्लाह पाक की तरफ से, उसके लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हमेशा की तरह अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए खड़े हैं और जब भी वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है ये दिल खोल कर मदद करते हैं और ये कर्ज है इन पे ये करते हैं। आज एक खतीर रकम हमने इकट्ठी की है अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए, तो मैं अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ इंडिविजुअली या इज्तिमाई तौर पर हमें सैलाब ज़दगान की खिदमत करनी चाहिए और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हम उनके साथ हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम बर्मिंघम की जो वेस्ट मिडलैंड की टीम है उनको कि उन्होंने 83,000 पाउंड जो एक ह्यूज अमाउंट है वो जो है वो यहाँ पे मुतासरीन के लिए इकट्ठी की। आज भी इसी तरह बर्मिंघम ने जो इमरान खान साहब की फ्लड अपील थी जो इन्होंने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए की थी, आज बर्मिंघम के शहर में 100,000 पाउंड की जो प्लेजेस हैं हमारे पास आ चुकी हैं। होपफुली वो सारे पैसे पाकिस्तान में ट्रांसफर होंगे। बहुत लोगों ने दिल खोल के हिस्सा लिया और उसी में हम भी यहाँ पे शामिल हैं, हमने परफॉर्म की और आप लोगों की तवज्जो से, आप लोगों के आने से यहाँ पे और रौनक हो गई। तकरीब के इख्तिताम पर मशहूर कव्वाल हाजी अमीर खान ने अपनी सुरीली आवाज में शुरका को खूब महसूस किया। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। ओल्डहम में लंकाशायर सुपर लीग की तरफ से खूबसूरत रंगारंग तकरीबें, तकसीम इनामात और सैलाब ज़दगान के लिए फंड रेजिंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद में फैमिलीज के साथ शिरकत की। कौंसल जनरल मैनचेस्टर तारिक वजीर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यास्मीन कुरैशी और मेयर ऑफ बोल्टन अख्तर जमान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। खूबसूरत रंगारंग तकरीब का अहवाल जानते हैं राजा वाजिद की रिपोर्ट में। ओल्डहम के मकामी हॉल में लंकाशायर सुपर लीग की तरफ से एक खूबसूरत और रंगारंग तकरीब तकसीमी इनामात और सैलाब ज़दगान के लिए फंड रेजिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक से किया गया।
तकरीब से खिताब करते हुए कौंसल जनरल मैनचेस्टर तारिक वजीर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यास्मीन कुरैशी, मेयर ऑफ बोल्टन अख्तर जमान और साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर तारिक महमूद का कहना था कि लंकाशायर सुपर लीग के ऑर्गेनाइजर सबा गौस और उनकी टीम को हम इतना अच्छा टूर्नामेंट कराने और इतनी खूबसूरत तकरीब मुनक्किद करने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। लंकाशायर सुपर लीग की विनर ब्लैकबर्न नाइट राइडर्स और रनर्स अप रिक्शा क्रिकेट क्लब मैनचेस्टर की टीमों को ट्रॉफियां और कैश इनामात, बेहतरीन इनफरादी कारकर्दगी पेश करने वाले खिलाड़ियों को भी इनामात और मेडल से नवाजा गया। मीडिया से बात करते हुए कौंसल जनरल मैनचेस्टर तारिक वजीर, MP यास्मीन कुरैशी और दूसरों का कहना था कि इस तरह के खेलों के इवेंट्स हमारी नौजवान नस्ल के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। आज ये लंकाशायर सुपर लीग की तकरीब तकसीम असनाद है जिसमें हमारे बहुत से पाकिस्तानी कम्युनिटी मेंबर्स मौजूद हैं और हम तो हमेशा इंकरेज करते हैं कि हमारी यंगर जनरेशन को स्पोर्ट्स के तमाम किस्म की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना चाहिए क्योंकि उसके बहुत उनसे उनको फ़वायद होते हैं, इसलिए हम इंकरेज भी करते हैं और हम हर जगह मौजूद भी होते हैं। सुपर लीग वालों ने यहाँ पे तकरीब का एहतमाम किया तकसीम इनामात के लिए, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी काविश है लंकाशायर सुपर लीग की, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है वो कम्युनिटीज़ को कनेक्ट करती है और इससे कम्युनिटी में आइसोलेशन दूर होती है, आप लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप्स बनाते हैं। A wonderful event was organised by Sabah Gos and his colleagues who run the Lancashire League. And also to raise money for the fund relief issues for Pakistan. तकरीब के ऑर्गेनाइजर सबा गौस, आबिद रियाज और शानी ने तकरीब में शिरकत करने और सैलाब ज़दगान के लिए अपने अतियात पेश करने पर तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। लैंकाशायर सुपर लीग बॉयज़ ने ये फंक्शन अरेंज किया है पाकिस्तान के फ्लड के लिए रिलीफ के एफर्ट में कुछ फंड रेजिंग करने के लिए, और ख़ास तौर पे सुपर लीग की ये कोशिश है कि जो पाकिस्तानी बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनको क्रिकेट के मैदान में लाया जाए। ये लीग जो है पूरे मैनचेस्टर और लैंकाशायर के इलाके को कवर करती है और इंशाअल्लाह ताला ये हमारा फंक्शन बड़ा अच्छा होगा और काफ़ी पैसे पाकिस्तान फ्लड रिलीफ के लिए भी जमा होंगे और आप देख रहे होंगे कि काफ़ी यंग बच्चे भी इधर हैं, उनकी भी हौसला अफजाई होगी। This is the LSL T20 T30 cricket presentation. What the aim of this evening is to generate money for the Pakistan floods in Pakistan. Our brothers and sisters who are suffering in Pakistan, so our aim for the evening is to generate as much possible, and then I am personally going over to Pakistan in the next couple of weeks and I will be distributing food parcels to all our brothers and sisters. मारूफ सिंगर शहरियार खान ने मौसीकी के तड़के से शुरका को खूब महसूस किया और दाद वसूल की। आज़ाद कश्मीर के जिला भिंबर की सरहदी तहसील समाहनी में वेनिस राजपूत वेलफेयर ट्रस्ट UK और वॉल्सल बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल खालिक कादरी के ताउन से एक डिस्पेंसरी तामीर की गई जो बुनियादी मरकज़ सेहत के तमाम तकाजे पूरी करती है। और अहले इलाका ने हुकूमत से अपील की कि वो बिल्डिंग तहवील में लेकर इसमें डॉक्टर्स और तमाम जरूरी अमला तैनात करें। मजीद अहवाल इरफान अहमद फराज की रिपोर्ट। इंसानी खिदमत करने वाली समाजी शख्सियत का ताल्लुक वॉल्सल बरतानिया से है। अब्दुल खालिक कादरी जो वेंस राजपूत और वेलफेयर ट्रस्ट UK के रूह रवा हैं, जिनके ताउन से मकामी आबादी के लिए तहसील समाहनी में बेहतरीन फर्स्ट एड हस्पताल की बिल्डिंग तामीर की गई जिसमें डिस्पेंसरी और बुनियादी मरकज़ सेहत की सहूलियात मौजूद हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सहाफ़ती शख्सियत चौधरी फजलुर रहमान का कहना था कि धरती माँ से रिश्ता निभाते हुए अब्दुल खालिक कादरी ने अपना हक अदा किया है। राजा वूफी अब्दुल रऊफ का कहना था कि अवाम, इलाका, समाजी तंजीम और अब्दुल खालिक कादरी के बहुत शुक्रगुजार हैं और DHO भिंबर से मुतालबा करते हैं इस बिल्डिंग को तंजीम और कादरी साहब की मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक और मकामी लोगों की ज़रूरत और मजबूरी के तहत फौरी सरकारी तहवील में लें और यहाँ महकमा सेहत का ज़रूरी अमला तैनात किया जाए। मास्टर मलिक अब्दुल रहमान, मलिक अल्ताफ, मलिक मुश्ताक, मलिक सद्दाम हुसैन, अदनान यूनुस नदीम और दीगर ने भी इज़हार ख्याल किया और 92 न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया। अब्दुल खालिक कादरी साहब ने ये डिस्पेंसरी तो बनवा दी और ये हवाले भी कर दी महकमा सेहत के, लेकिन अफसोसनाक सूरत ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपने इसको हवाले करवा भी लिया, जिम्मेदारी भी ले ली, लेकिन यहाँ डॉक्टर की फैसिलिटीज़ न होने की वजह से बहुत सी मुश्किलात हैं और इसका वाहिद हल यही है कि हुकूमत रियासत और हमारे जो DHO भिंबर और यहाँ समानी के जिम्मेदारा ने महकमा सेहत के वो यहाँ पे अमले का कम से कम सहूलत मुहैया करें हमने की। 2 साल गुजरने के बावजूद ना तो ये डिस्पेंसरी कागजात मौजूद है मुजफ्फराबाद में, ना तो तहवील में दी गई है और ना कोई डॉक्टर बंदोबस्त किया गया है। हमारी पुरजोर अपील है कि जो भी यहाँ अगर ये कादी साहब मीरपुर से आकर यहाँ इतना काम कर सकते हैं, करोड़ रुपये खर्च कर सकते हैं, जो मुतलका यहाँ के MLA उनका ये हक बनता है कि इसका उनका वादा भी किया था कि 1 किलोमीटर में बना तो मैं 1 किलोमीटर सड़क भी दूंगा और ये आपका जो काम है ये भी करूँगा। हम उनसे अपील करते हैं कि वो
अपना उस जिम्मेदारी को जो वादा करके गए उसे वादा वफाई करें, वादा खिलाफी न करें, ताकि हमारा ये काम जो है, ये पसमानदा इलाका है, यहाँ लोगों में बेशुमार मुश्किलात हैं, आपने सब कुछ देख लिया है, आपको पता भी है, तो आप ऐसा करें कि ये हमारे लिए जो है एक डॉक्टर का बंदोबस्त और उसके बाद उसको अपनी तवील में सरकारी तवील में लेकर ये उसको जो हमारे पर एहसान करें। तकरीबन चारों तरफ से हमें 3 किलोमीटर, एक तो समानी अगर जाएँ तो ये हमें 7 किलोमीटर पड़ता है, और नियाला यहाँ से 3 किलोमीटर है, और सूना वैली यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर है। कोई नज़दीक डिस्पेंसरी नहीं है, तो हमें ये बहुत तकलीफ़ है। तो महकमा सेहत से मैं अपील करता हूँ कि कम से कम वो ही कुछ नोटिस लेके तो इधर दवाइयाँ फिल फोर हमें दें, और उसके बाद जो है ना वो डॉक्टर दें। और ये हमारी हुकूमत है जो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ये करोड़ों अरबों रुपए के फ़ंड जो आते हैं महकमा सेहत में, ये जो इधर बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं इनका भी हक बनता है। ये जो गरीब लोग हैं इधर उनका ये हक बनता है, उनको हक मिलना चाहिए। अब्दुल खालिक कादरी की फैमिली ने भी तकरीब में शिरकत की और उनका कहना था कि तंजीम अपने मकासद पर अमल पैरा है और मजीद ऐसे प्रोजेक्ट्स पर भी काम जारी है। Proud of the area and the hospital built here, as there's many poor people here and there's not many facilities here, especially for the poor. Here, the hospital has been built mainly for the elderly people and the young people, and it's here to help the people as there isn't many hospitals nearby. अवाम इलाका का मुतालबा है कि हुकूमत इस बिल्डिंग को सरकारी तहवील में लेकर डॉक्टर्स और सेहत का ज़रूरी अमला तैनात करें और अद्वियात भी मुहैया की जाएं। इरफान अहमद फराज, 92 न्यूज़, वालसल। मुस्लिम लीग नून हॉलैंड के चेयरमैन पीर सैयद इकरार शाह की क़यादत में वफ़द ने कायद मुस्लिम लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से खुसूसी मुलाकात की। 1 घंटे से ज़ायद रहने वाली मुलाकात में सियासी उमूर बारे तफसीली बातचीत। मुलाकात में साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर इसहाक़ डार और दीगर लीगी कायदीन भी मौजूद थे। तफसीलात के मुताबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की खुसूसी दावत पर चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हॉलैंड पीर सैयद इकरार शाह की क़यादत में वफ़द ने लंदन ऑफिस में मुलाकात की। वफ़द में सदर मुस्लिम लीग हॉलैंड चौधरी परवेज़ अली, सीनियर नायब सदर जावेद भट्ट, सेक्रेटरी जनरल फैसल मंजूर, सेक्रेटरी इत्तलाआत मोहम्मद जावेद इकबाल खोखर शामिल थे। इस मौके पर मियां नवाज शरीफ ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क का सरमाया है और पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। मुलाकात 1 घंटे तक जारी रही। मुलाकात के दौरान साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर इसहाक़ डार, मियां शहबाज शरीफ के साहिबजादे सलमान शहबाज, नासिर भट्ट, नसरुल्लाह राशिद और दीगर लीगी कायदीन भी मौजूद थे। दुबई में खटक फलाही कमेटी यूएई का अहम इजलास तंजीम के सदर हाजी रहमतुल्लाह खान की सदारत में मुनक़िद हुआ। इजलास में कमेटी के सीनियर रहनुमा सुल्तान अकबर खान ने तंजीम के फलाही कामों के हवाले से शुरका को ब्रीफिंग दी। सैलाब ज़दगान की मदद के हवाले से इक़दामात का जायजा लिया गया। सैयद मुदस्सिर खुशनूद की ये रिपोर्ट। खटक फलाही कमेटी गुज़िश्ता 10 साल से यूएई में समाजी काम कर रही है और मुश्किल वक्त में ओवरसीज पाकिस्तानियों और हम वतनों की मदद करती आ रही है। पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए खटक फलाही कमेटी पेश है। गुज़िश्ता रोज कमेटी के सदर हाजी रहमतुल्लाह के दौरा रूस से वापसी पर अहम इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए किए जाने वाले इक़दामात का जायजा लिया गया। तकरीब से खिताब करते हुए फलाही तंजीम के सदर हाजी रहमतुल्लाह, नायब सदर अशरफुल्लाह, जनरल सेक्रेटरी सरदार बारी, सुल्तान अकबर खटक, मोहम्मद अशफाक, मियां तैमूर हसन, साबिक सदर नामूस खान का कहना था कि तंजीम के मंशूर में ओवरसीज पाकिस्तानियों की मदद के लिए मजीद तरमीम की गई है। डेड बॉडी को पाकिस्तान भेजने के इंतजाम से लेकर अमारात में मुकीम पाकिस्तानियों के इलाज के लिए भी एक मखसूस रकम मुख्तस करना खुशाइंद है। खटक फलाही कमेटी के सीनियर ओहदेदार सुल्तान अकबर खटक, सदर हाजी रहमतुल्लाह समेत दीगर का 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि यूएई में कोई भी पाकिस्तानी दिल की बीमारी में मुब्तला है, उसका इलाज ये कमेटी कराएगी। इसे 10,000 दिरहम दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि ये फलाही कमेटी किसी से फंड्स नहीं लेती, अपने पैसों से लोगों की मदद कर रही है। आखिर में हाजी रहमतुल्लाह की जानिब से सैलाब मुतासरीन की माली मदद के लिए रकम फौरी तौर पर पाकिस्तान भेजने की मंजूरी दी गई। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। अमेरिका में मिड टर्म इंतखाबात में साउथ एशियन कम्युनिटी ने रियासत मैरीलैंड में गवर्नर के डेमोक्रेट उम्मीदवार वेस्टमोर की हिमायत का ऐलान कर दिया। तफसीलात जानते हैं क़रम शहजाद की रिपोर्ट में। अमेरिका में नवंबर में होने वाले वस्त मुद्दत के इंतखाबात की तैयारियां शुरू हो गईं। रियासत मैरीलैंड में पाकिस्तानियों समेत साउथ एशियन कम्युनिटी ने गवर्नर की सीट पर डेमोक्रेटिक उम्मीदवार वेस्टमोर और लेफ्टिनेंट गवर्नर की सीट पर अरुणा मेलर की हिमायत का फैसला किया। इस सिलसिले में मुस्लिम्स ऑफ अमेरिका के चेयरमैन साजिद तारड़ और सिख्स ऑफ अमेरिका के चेयरमैन JC सिंह ने तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात और रियासत मैरीलैंड में मुख्तलिफ शोबों से नुमाइंदगी करने वाले अफराद शरीक हुए। इस मौका पर फंड रेजिंग के अलावा गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के उम्मीदवारों की भरपूर सपोर्ट का भी ऐलान किया गया। आज यहाँ पे हमने वेस्टमोर जो कि फ्यूचर गवर्नर ऑफ मैरीलैंड है, जिन्होंने प्राइमरी इलेक्शन जीता है, उनका इवेंट किया गया। साउथ एशियन कम्युनिटी सारी इकट्ठी हुई
पाकिस्तानी, इंडियन, सिख, हिंदू, क्रिश्चियन सब इकट्ठे हुए और इट इज सो इम्पोर्टेंट कि हमारी अगली जनरेशन की सियासी तरबियत की जा सके। और मैं समझता हूँ कि आज हमारी यूथ में से काफी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सीखा, देखे, उनसे मिले, उनसे क्वेश्चन किए और मैं समझता हूँ ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। साउथ एशियन कम्युनिटी ने रल के मेरे पाकिस्तानी भरावां ने, इंडियन भरावां ने, भैनां ने मिल के अज एक कम्युनिटी इवेंट किया सी और अज इत्थे बड़ा वड्डा इवेंट होया। जिहड़ा नवे गवर्नर आ रहे ने मैरीलैंड दे वेस्टमोर ते उन्हां दे नाल लेफ्टिनेंट गवर्नर अरुणा मिलर, जो कि दोनों ही माइनॉरिटी दे ने। वेस्टमोर जिहड़े ने जमैकन अमेरिकन ने, अरुणा मिलर इंडियन अमेरिकन ने। और ये बहुत जरूरी है साडी कम्युनिटी वास्ते कि असीं अपनी पहचान बनाइए, असीं पॉलिटिकल जिहड़े movement है हिस्सा लइए। We are part of the political system here. We live here. This is our home. So we need to take care of our home. We need to be involved in politics. Politics controls every aspect of our lives. So we need to have our voices heard. When we look to who's running for politics, who's involved in politics, we need to see our own people at the forefront. We need to see our brothers and our sisters, our South Asian, Pakistani. तकरीब में मुसलमानों, सिखों और हिंदुओं समेत मुख्तलिफ मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और नौजवानों ने भी खुसूसी शिरकत की ताकि एशियन कम्युनिटी की नई नस्ल को भी सियासत के जरिए इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचाया जा सके। साउथ एशियन कम्युनिटी ने गवर्नर के उम्मीदवार से इस बात की यकीन दहानी हासिल की है कि वो कामयाबी के बाद पाकिस्तानियों समेत तमाम साउथ एशियन कम्युनिटी की आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों में बुलंद करेंगे। खुर्रम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन DC। अमेरिका की मारूफ अदबी तंजीम तख्तीस अदब इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम ह्यूस्टन में मुमताज़ मिज़ाह निगार अनवर मकसूद के साथ एक शाम का इनेकाद किया गया। मिज़ाह से भरपूर अपनी गुफ्तगू से अनवर मकसूद ने तकरीब को कश्ते ज़ाफ़रान बना दिया। देखते हैं ह्यूस्टन से खुर्रम शहजाद की ये रिपोर्ट। अमेरिका की मारूफ अदबी तंजीम तकदीस अदब इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम ह्यूस्टन में मुनक्किद होने वाली तकरीब मज़ाह को मुमताज़ मज़ाह निगार अनवर मकसूद ने मज़ाह से भरपूर गुफ्तगू से तकरीब को किश्ते ज़ाफ़रान बना दिया। इस मौके पर अनवर मकसूद ने अपने रवायती अंदाज में पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल से लेकर मारूफ शोरा के साथ गुजरे यादगारी वाक़यात का बड़ी खूबसूरती से अहाता किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा मुल्की सूरत हाल को देख कर लगता है मसला कश्मीर हल हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान का मसला हल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 75 साल का हो गया, ना इसने पेट्रोल पैदा किया, ना गंदम और ना ही पानी पैदा किया, और 75 साल की उम्र में सिर्फ बच्चे ही पैदा किए हैं। कोरोना वायरस की वजह से 2 साल में पाकिस्तानी आबादी 22 करोड़ से 23 करोड़ पर पहुंच गई। एक बात तो पाकिस्तान के बारे में अच्छी तरह जानते हैं आप सब। 75 साल का है, न गंदम पैदा कर रहा है, न बिजली पैदा कर रहा है, न पानी पैदा कर रहा है। 75 साल की उम्र में सिर्फ बच्चे पैदा कर रहे हैं। अनवर मकसूद ने लतीफ पेराए में पाकिस्तान की सैलाबी सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहा कि पाकिस्तान में सब गरीब डूब गए मगर कोई वजीर और मशीर नहीं डूबा, क्योंकि डूबने के लिए गैरतमंद होना जरूरी है। अनवर मकसूद की मज़ाहिया गुफ्तगू से हॉल मुसलसल कह कहों से गूंजता रहा। कोई वजीर, कोई मशीर, कोई बड़ा अफसर, कोई सफीर नहीं होगा, क्योंकि डूब कर मरने के लिए गैरतमंद होना बहुत जरूरी है। तकरीब की निजामत मारूफ रेडियो प्रोग्रामर शाजिया खान ने की, जबकि तकरीब के मुंतजिम फयाज खान ने मेहमानों का खैर मकदम और स्पॉन्सर्स से इजहार तशक्कुर किया। खुर्रम शहजाद, नुमाइंदा 92 न्यूज़, वाशिंगटन। जर्मनी के शहर बर्लिन में सफीर पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने आई एम रिमार्केबल के उन्वान से एक तकरीब में शिरकत की, जिसका एहतमाम पाकिस्तानी वुमेन इन कम्युनिटी यूरोप चैप्टर ने किया। इस तकरीब में IT के जदीद आलात और टेक्निक्स के बारे में बताया गया। मज़ीद तफसीलात असगर मिर्जा की इस रिपोर्ट में। इस तकरीब का एहतमाम उन ख़वातीन और लड़कियों के लिए किया गया जो अभी IT के मुख्तलिफ शोबों में दाखिल हो रही हैं और मुस्तकबिल में बतौर तकनीकी माहिर काम करने की ख्वाहिशमंद हैं और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना चाहती हैं। तकरीब से खिताब करते हुए सफ़ीर पाकिस्तान ने PWIC को यूरोप चैप्टर खोलने पर मुबारकबाद पेश की और कहा कि पाकिस्तान IT प्रोफेशनल्स बिलखुसूस ख़वातीन दुनिया के सामने अपनी पेशा वराना महारत का लोहा मनवा रही हैं। मुल्क के तशख़्ख़ुस की बेहतरी और पाकिस्तान के नौजवान टैलेंट की हौसला अफजाई के लिए सफारत खाने की जामे और मुस्तकिल हिमायत
کا شامل ہوگی۔ شرکاء کو پاکستان میں سیلاب کے تباہ کن اثرات کے بارے میں بھی آگاہ کیا اور ان پر زور دیا کہ وہ متاثرین کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں۔ PWIC کی مقررین ماہم خان اور سدرا خان نے سفیر پاکستان کی جانب سے تنظیم کی حوصلہ افزائی اور تقریب میں شرکت پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ تقریب کے آخر میں شرکاء کو پاکستان میں سیلاب کے تباہ کن اثرات کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا اور متاثرین کی زیادہ سے زیادہ مدد کی اپیل کی گئی۔ اصغر مرزا، 92 نیوز، برلن، جرمنی۔